Hello dear students, today we are going to study about chemistry, and in chemistry we are going to study about biomolecules. Molecules which are active, molecules which are biologically active or which are present in living organisms are known as biomolecules. Which molecules are there? Mainly carbohydrates, protein, nucleic acid, DNA, RNA, which are a part of nucleic acid, lipid, enzyme, and vitamins. Which carbohydrates, nucleic acid, protein, okay, DNA, RNA, lipid, enzyme, vitamins. Fine. But in this chapter, we have to study only carbohydrates, proteins, nucleic acid, enzymes, and vitamins. Okay. Today we are going to study about protein. A scientist called Emil Fischer gives information about protein. He hydrolyzes protein and get amino acid. Whenever you hydrolyze protein, it converts into first of all chain of polysaccharides. After that polypeptide chains converts into small polysaccharides. That small polypeptide converts into peptones, and that peptones converts into amino acid. So amino acid is a structural part of protein. Amino acid is a structural part of what? Protein. See, simple structure of amino acid is like this: COOH, NH2, R, H, carbon. This carbon contains amino group as well as carboxylic acid group, and that's why it's called amino acid. Okay, we can classify this amino acid on base of so many things. First of all, COOH is a main functional group, and this carbon is called alpha carbon. So mainly all amino acid is alpha amino acid. All amino acid is alpha amino acid. Another non-essential amino acid. Any amino acid which can produced by human beings, any amino acid which is produced by human beings or body, by our body, they are non-essential amino acid for us. We don't have to take it by food. And another example is essential amino acid. Essential amino acid are that which we have to take as a food. ओके जो भी अमीनो एसिड को आपको फूड की तरह गेन करना पड़ेगा उस अमीनो एसिड को आप क्या बोलेंगे? एसेंशियल अमीनो एसिड बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एसेंशियल अमीनो एसिड. अनदर क्लासिफिकेशन, अमीनो ग्रुप इज बेसिक इन नेचर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एसिडिक इन नेचर, एसिड एंड बेस न्यूट्रल. So another classification is based on amino acid could be neutral, acidic or basic, which is based on
आर ग्रुप। हमने आर के बारे में तो अभी तक बात ही नहीं की। अगर आर ग्रुप एसिडिक ग्रुप है तो ये बेसिक ये एसिडिक एक दूसरे की बात खत्म कर दी, न्यूट्रल हो गए, लेकिन आर एसिडिक। इफ आर इज एसिडिक then amino acid is acidic। वैसे अगर R बेसिक है तो अमीनो एसिड भी कैसा बन जाएगा, बेसिक। जैसे कि मैंने ऐसे कोई R का ग्रुप लिया जो R के ग्रुप में NH2 प्रेजेंट है या फिर कोई बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है तो R ग्रुप कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो पूरा अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा, बेसिक। अगर R के अंदर COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो एक्स्ट्रा COOH ग्रुप आ रहा है, एक्स्ट्रा COOH ग्रुप आने की वजह से पूरा अमीनो एसिड क्या बन जाएगा, एसिडिक। If R is neutral, then amino acid is neutral। फाइन, इस तरह में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और देखिए आप याद रखना, अगर R की तरह H है, अगर R की तरह H है तो उसको बोलेंगे ग्लाइसिन, which is sweet in a taste। एक दूसरा एग्जांपल है टायरोसिन, उसका बटर जैसा टेस्ट है, टायरोसिन। ओके, थर्ड एक एग्जांपल है प्रोलिन। प्रोलिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर सेकेंडरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। अगर इसमें भी NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, इट इज प्राइमरी अमीनो ग्रुप। आपको पता है अगर NH2 होगा तो वो प्राइमरी, NH होगा तो वो सेकेंडरी, N है तो टर्शियरी। तो प्रोलिन एक ऐसा अमीनो एसिड है, जिसके अंदर टर्शियरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट, सॉरी सेकेंडरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट। इज क्लियर? ओके, इसके अलावा भी हम इसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। C NH2 COOH R and H। If NH2 is in right side, it called capital D amino acid। It should be capital D amino acid। And if NH2 is on left side, it should be capital N amino acid। आपने ये पढ़ा था डीएल नोमेनक्लेचर में, आइसोमेरिज्म में, कि अगर किसी भी कंपाउंड के लास्ट कार्बन में OH ग्रुप अगर राइट हैंड साइड है तो उसको बोलेंगे कैपिटल डी, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको बोलेंगे कैपिटल एल। ऐसे ही अमीनो एसिड आपको कौन से ग्रुप को कंसीडर करना है, NH2 ग्रुप। अगर NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड है तो उसको बोलेंगे कैपिटल डी, और अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एल। अनदर थिंग, if R is not equal to H, R की तरह H नहीं, जैसे ये मैं लिख दिया COOH NH2 H H, ये क्या बन गया COOH CH2 NH2 ग्लाइसिन। ये it is not carrier, but if is not equal, R is not equal to H तो क्या बनेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे COOH, यहाँ पे NH2। इस कार्बन के चारों और डिफरेंट ग्रुप हैं, तो फिर ये क्या बन जाएगा, कायरल कार्बन बन जाएगा। और अगर एक कायरल कार्बन बन जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। यानी कि अगर जो आपका R ग्रुप है वो R ग्रुप H नहीं है, वो R ग्रुप क्या नहीं है, H नहीं है, तो फिर वो जो कार्बन है वो कायरल कार्बन हो जाएगा और उसकी वजह से आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अनदर थिंग, ये COOH ग्रुप है वो एसिडिक होने की वजह से H+ को रिलीज करेगा या फिर डोनेट करेगा, NH2
जो ग्रुप है वो बेसिक होने की वजह से H+ को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। नाउ अगर ये RCH H+ रिमूव कर दे तो C+, अभी ये एसिडिक था तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। एसिड H+ रिमूव करने के बाद जो बना था उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस। वैसे ही NH2 में H+ गेन किया वो क्या बना देगा, NH3+, उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड। नाउ बेस जब भी H+ गेन करता है और जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड बोलेंगे। इस आयन के अंदर पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट और नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट। डाइपोलर आयन नॉर्मली आयन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज या फिर नेगेटिवली चार्ज, यानी कि पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आयन भी और नेगेटिव आयन दोनों एक साथ में है तो उसको हम बोलेंगे ज्विटर आयन। And in jitter ion, NH3+ act as acid, C++ act as a base. याद रखना। अब इस ज्विटर आयन में पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, उसकी वजह से इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक कंडक्शन फ्लो किया जाए या फिर इलेक्ट्रिक करंट के बीच में इसको रखा जाए तो ये ना तो एनोड की तरफ जाएगा ना तो कैथोड की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि एनोड कैसा है, पॉजिटिव, तो उसकी तरफ जाएगा कौन, नेगेटिव। कैथोड कैसा है, नेगेटिव, तो उसकी तरफ जाएगा कौन, पॉजिटिव। लेकिन इसमें तो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो होगा क्या वो देखते हैं। जैसे ही मेरे पास ज्विटर आयन प्रेजेंट है, ये मेरा ज्विटर आयन हो गया। अब मैंने इसको pH रेजिस्टेंस में यानी कि H+ के मीडियम में रखा, H+ गेन करेगा, ऐसा हो जाएगा RCH COOH Na3+, पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव आयन किस तरह, कैथोड डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि कैथोड कैसे नहीं, यानी कि ज्विटर आयन को अगर एसिडिक मीडियम में रखा जाए, कौन से मीडियम में रखा जाए, एसिडिक मीडियम में रखा जाए, तो एसिडिक मीडियम में रखने की वजह से वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा। पॉजिटिव आयन किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रिक करंट के बीच कौन सी होगी, कैथोड। इसको मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलूंगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाया, लेकिन उस वक्त हम बात कर रहे थे कॉलोइड की, यहाँ पे बात कर रहे हैं ज्विटर आयन। क्लियर? यानी कि ज्विटर आयन की अगर pH लेस देन 7 रखी जाए, यानी कि एसिडिक मीडियम में रखा जाए, तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा और पॉजिटिव आयन किस तरह मोशन करेगा, कैथोड के डायरेक्शन में। लेकिन अगर यहाँ पे pH greater than 7 यानी कि OH- रखा है, यानी कि बेसिक मीडियम में रखा है, तो OH- यहाँ से H+ गेन करेगा। H+ गेन करने की वजह से क्या रिमूव करेगा, H2, तो फिर क्या बनेगा, RCH COOH और NH2, ये क्या बनेगा, नेगेटिव आयन। और नेगेटिव आयन कौन सी डायरेक्शन में मोशन करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि एनोड की डायरेक्शन। यानी कि जो नॉर्मल ज्विटर आयन है उसके अंदर पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट है, नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंट में ना तो एनोड की तरफ मूव करेगा ना तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। लेकिन इन एसिडिक मीडियम ज्विटर आयन कन्वर्ट्स इनटू पॉजिटिव आयन, दैट्स व्हाई इट मूव टुवर्ड्स कैथोड। In basic medium, zwitter ion converts into negative ion. That's why it move towards anode. Clear? एक बात समझना, अगर ऐसी कोई pH प्रेजेंट है जिस pH पे zwitter ion किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करते, ऐसी कोई pH प्रेजेंट है जिस
isoelectric point of that amino acid, isoelectric point of that amino acid। और सबके आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे अभी तक हमने R को कंसीडर नहीं किया, हमको R को कंसीडर करना है। और डायरेक्टली ऐसा नहीं हो सकता कि वो न्यूट्रल होगा तो किसी भी करेगा नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे R को कंसीडर करना बाकी है। अभी R ऐसे भी है, बेसिक उसके बारे में मैंने बात की नहीं है, यानी कि सिर्फ नॉर्मली इसको देख के हम बोल सकते हैं। समझ में आ गया? ओके, सी ये जो एमिनो एसिड है एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। कैसे बनाना है प्रोटीन? ये हमारा एक एमिनो एसिड ग्लाइसिन, ये हमारा दूसरा एमिनो एसिड ग्लाइसिन, दोनों ग्लाइसिन के लिए हमें COOH में से OH ग्रुप रिमूव होगा, NH2 में से H रिमूव होगा, रिमूव क्या होगा? H2 बनेगा क्या? NH2CO CH2CO NHCH2COOH। ओके, इसको हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? इन केमिस्ट्री इट इज एमाइड बॉन्ड, लेकिन प्रोटीन की डायरेक्शन में उसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड। यहाँ पे कितने पेप्टाइड बॉन्ड बने? एक। जितने भी COH NH बॉन्ड बन रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे कितने पेप्टाइड बॉन्ड बना? एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, लेकिन कितने एमिनो एसिड कनेक्ट हुए? दो। अगर दो एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे डाइपेप्टाइड। उसको हम क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। अगर तीन एमिनो एसिड कनेक्ट हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड। अगर चार एमिनो एसिड कनेक्ट हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेट्रापेप्टाइड। क्लियर? दो एमिनो एसिड उसकी वजह से डाइपेप्टाइड, एमाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड बॉन्ड तो उसमें एक ही होगा। ओके, अंडर जिस भी एमिनो एसिड का COOH ग्रुप यूज हो रहा है, जिस भी एमिनो एसिड का ग्रुप है COOH ग्रुप यूज हो रहा है, ओके, उसको हम उसके नोमेनक्लेचर में हम लगाएंगे आई। क्या लगाएंगे? आई। तो उसको बोलेंगे ग्लाइसाइड, ग्लाइसिन। रिपीट करो, जिस भी एमिनो एसिड का COOH ग्रुप यूज होगा, क्या यूज होगा? COOH ग्रुप यूज होगा, उसके नोमेनक्लेचर में हम क्या लगाएंगे? आई। तो ग्लाइसाइड जिसका COOH यूज नहीं हुआ उसका जो मेन नेम है वही लिखेंगे ग्लाइसाइड, ग्लाइसिन। जैसे कि मैंने ये यूज किया NH2 CH CH3 COOH प्लस NH2 CH2 COOH। यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, माइनस H2। क्या बनेगा? NH2 CH3 CONH CH2 COOH। क्या बन गया? एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। कितने एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए? दो एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए, उसकी वजह से उसको क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। यहाँ पे ये एक एमिनो एसिड A है, एक दूसरा एमिनो एसिड B है, इसका नाम है एलेनाइनम, इसका नाम है ग्लाइसाइनम। इसका COOH ग्रुप यूज हो रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, उसके नोमेनक्लेचर हम क्या अप्लाई करेंगे? आई। उसकी वजह से इसका नाम बनेगा एलेनाइल ग्लाइसिन। क्या बनेगा? एलेनाइल ग्लाइसिन। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपके पास दो डिफरेंट एमिनो एसिड A एंड B, उसमें से मुझे क्या बनाना है? डाइपेप्टाइड बनाना है। तो कितने बनेंगे? A भी बनेगी और B भी बनेगी, दोनों के नाम डिफरेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पे ये और B ऐसा है तो नाम क्या बना? एलेनाइल ग्लाइसिन।
लेकिन अगर ये ग्लाइसिन आगे आ जाए तो इसका COOH ग्रुप यूज होगा, तो नाम क्या आएगा, ग्लाइसाइल एलेनाइन। रिपीट कर रहा हूं, जिसका भी COOH ग्रुप यूज हो, जिसका भी COOH ग्रुप यूज हो, उसके नोमेनक्लेचर में क्या अप्लाई करना है, आई। जैसे कि मेरे पास 3 एमिनो एसिड, तीनों एमिनो एसिड डिफरेंट है, ओए देखते हैं चलो, ये क्या है, NH2Cl2 COOH, NH2CH CH3 COOH, NH2CH CH2 benzene COOH, ग्लाइसिन एलेनाइन फिनाइलाइन, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या बनेगा, -2H2 NH2CH2CONHCH3CONHCH2 benzene COOH। इसका COOH ग्रुप यूज हुआ ग्लाइसाइल, इसका भी COOH ग्रुप यूज हुआ एलेनाइल, इसका COOH ग्रुप नहीं यूज हुआ, उसकी वजह से फिनाइल एलेनाइन, ये उसका नाम है, ग्लाइसाइल एलेनाइल फिनाइल एलेनाइन। समझ में आ गया, कितने एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़े, 3, इसकी वजह से इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्राइपेप्टाइड, लेकिन पेप्टाइड कितने आएंगे, 2। क्लियर, तो मेरे पास ये 3 डिफरेंट एमिनो एसिड है, A B C, तीनों को यूज करके मुझे ट्राइपेप्टाइड बनाना है, तो कौन सा बनेगा, ABC बनेगा और ACE बनेगा, दोनों के नाम कैसे होंगे, डिफरेंट। वैसे BCA बनेगा, BAC बनेगा, दोनों के नाम कैसे होंगे, डिफरेंट। वैसे CA भी बनेगा और CBA बनेगा, इन दोनों के नाम कैसे होंगे, डिफरेंट। 6 के नाम कैसे होंगे, डिफरेंट, तो टोटल कितने, 6 ट्राइपेप्टाइड we can form. How many? 6 ट्राइपेप्टाइड we can form. Is it clear? Fine. अगर मैं बहुत सारे लॉन्ग चेन बनाऊं, अगर मैं उसको 4 से 10 तक ले जाऊं, टेट्रा से 10 डेका तक ले जाऊं, तो उसको बोलूंगा मैं ओलिगोपेप्टाइड। क्या बोलूंगा, ओलिगोपेप्टाइड। अगर मैं चेन को लॉन्ग करता जाऊं और स्मॉल थोड़ी सी चेन बनेगी, तो उसको बोलेंगे स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलेंगे, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर ये चेन बहुत ही लॉन्ग हो जाए, उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही बढ़ जाता है, तो उसको बोलेंगे प्रोटीन। उसको क्या बोलेंगे, प्रोटीन। लेकिन मैं बहुत ही लंबी चेन बनाऊं, तभी एक एंड पे COOH ग्रुप कैसा रहेगा, फ्री रहेगा। अगर मैं चाहे जितनी बड़ी चेन बनाऊं, लेकिन इस एंड पे क्या रहेगा, COOH ग्रुप फ्री रहेगा, इसको बोलेंगे CN। जिसको हर वक्त मैं राइट साइड में लिखूंगा, हर वक्त मैं किस साइड में लिखूंगा, राइट साइड में। वैसे एक तरफ क्या फ्री रहेगा, नाइट्रोजन, उसको बोलूंगा मैं NN, उसको मैं हर वक्त कौन सी डायरेक्शन में लिखूंगा, लेफ्ट डायरेक्शन, उसको मैं हर वक्त कौन सी डायरेक्शन में लिखूंगा, लेफ्ट डायरेक्शन। क्लियर, समझ में आ गया, इज अ मेथड टू राइट एमिनो एसिड या फिर पेप्टाइड चेन। क्लियर, फाइन, दैट्स इट। इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रोटीन कैसे बनता है। अभी ध्यान से समझो, टाइप ऑफ प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन,
ग्लोबुलर प्रोटीन वो स्पाइरल फॉर्म में, कैसा फॉर्म है? स्पाइरल फॉर्म। ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है दे आर सॉल्युबल इनटू वाटर, दे आर सॉल्युबल इनटू वाटर। जो भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है अगर वो ग्लोबुलर हो गया तो उसको बोलेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन। और ग्लोबुलर प्रोटीन आर सॉल्युबल इनटू वाटर। उसके एग्जांपल में आएगा इंसुलिन और अल्बुमिन। इंसुलिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है एज अ हार्मोन, हमारी बॉडी में इंसुलिन एज अ हार्मोन प्रेजेंट है और वो इंसुलिन हमारे बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए वर्क करता है। वैसे तो इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों एंजाइम मिलकर ये काम करते हैं, लेकिन मेनली में ऐसा रहता हो कि इंसुलिन ये काम करता है। ओके, क्योंकि हमें बायोलॉजी में नहीं है। और दूसरा है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन एग में से मिलता है, जो एग वाइट है उसमें क्या होगा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन होगा। फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन कंपैरेटिवली ग्लोबुलर प्रोटीन से ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, और दे आर इनसॉल्युबल इनटू वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इनटू वाटर। नाउ फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल में क्या लेंगे? फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है स्क्लेरोप्रोटीन। करेक्ट, हमारे जो हेयर है ओके वो सारे स्क्लेरोप्रोटीन। ओके, वो किसी में डिजॉल्व होते नहीं। और दूसरा है मायोसिन, हमारे जो मसल्स है वो मसल्स के जो भी पार्ट है उसमें मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मायोसिन प्रोटीन। इसके अलावा अगर मैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बात करूं, ये बहुत ही इजी है, वैसे एक बार समझ जाओ। प्राइमरी स्ट्रक्चर एमिनो एसिड, उसके साथ क्या जुड़ा है? एमिनो एसिड, इसके 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 साथ क्या जुड़ा है? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड इसके साथ जुड़ते जाएंगे और जो लॉन्ग चेन बनेगी, सिर्फ लॉन्ग चेन, दूसरा कुछ नहीं, तो उस लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड को हम बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी कि आपके पास ये सिर्फ थ्रेड है, ये जो लीनियर थ्रेड है उस थ्रेड को बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्लियर? उसमें से क्या बनेगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अभी जो ये थ्रेड है उसको अगर मैंने कुछ ऐसा बना दिया तो उसको बोलूंगा मैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या बोलूंगा मैं? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। यानी कि मेरे पास पहले थ्रेड थी, थ्रेड को मैंने क्या कर दिया? हेलिक्स स्ट्रक्चर में अरेंज कर दिया। कौन से स्ट्रक्चर में अरेंज कर दिया? हेलिक्स स्ट्रक्चर में। तो उसका बोलूंगा मैं अल्फा हेलिक्स। और ये जो एक हेलिक्स आएगा उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 3.6 एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा। कितने एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा? 3.6। दूसरा क्या होगा? उसमें सी डबल बॉन्ड लो प्रेजेंट, नीचे से कोई ऊपर जा रहा है उसमें एन बॉन्ड एच प्रेजेंट, तो वो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बनेगा। वो दोनों के बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन। क्लियर? यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ऐसे हाइड्रोजन बनेगा। क्लियर? लेकिन अगर मैंने एक थ्रेड ली, उसको ऐसे अरेंज किया, दूसरी थ्रेड ली, उसको मैंने ऐसे अरेंज किया, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एन बॉन्ड एच, यहाँ के दोनों के बीच में क्या बना? हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि यहाँ पे एक ही थ्रेड थी, यानी कि एक ही चेन थी पॉलीपेप्टाइड की। यहाँ पे दो चेन है पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पे एक ही चेन में उसके अंदर ही क्या बन गया था? हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया था। यहाँ पे जो डिफरेंट चेन है और वो डिफरेंट चेन के बीच में क्या बना हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। इसको मैं बोलूंगा बीटा प्लेटेड शीट। उसको मैं क्या बोलूंगा?
बीटा प्लेटेड शीट। ओके, उसके बाद आएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर। अभी क्या है, मेरे पास ये अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है, उसको मैंने ऑरेंज कर दिया। जैसे मेरे पास बीटा प्लेटेड शीट थी, उसको मैंने कुछ ऐसा अरेंज कर दिया, यानी कि इररेगुलर अरेंजमेंट हो गई और उसके अंदर अंदर बिटवीन डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, आयोनिक बॉन्ड सब कुछ बन गया। तो उसको मैं बोलूंगा टर्शियरी स्ट्रक्चर। याद रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ काम का नहीं, वो सिर्फ चेन ऑफ एमिनो एसिड। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद उसकी एक्टिविटी आएगी। उसके पहले जो भी एमिनो एसिड प्राइमरी तौर पे बना हुआ है, जो भी एमिनो एसिड प्राइमरी तौर पे बना हुआ है, वो एमिनो एसिड बिल्कुल हमारे काम का है नहीं। दे आर इनएक्टिव, दे आर इनएक्टिव स्ट्रक्चर्स। सी, ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो अल्फा हेलिक्स में से बना हो सकता है या बीटा हेलिक्स में से बना हो सकता है। उसमें से बनेगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट है। नॉर्मली मेटल, जैसे मेरे पास Fe+2 प्रेजेंट है, इस Fe+2 के साथ दो अल्फा हेलिक्स कंबाइन हो जाएंगे, इसके टर्शियरी स्ट्रक्चर, और दो बीटा शीट कंबाइन हो जाएंगे उसके स्ट्रक्चर। यानी मेटलिक आयन के साथ में अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक दूसरे के साथ जुड़ जाए और जो कंपाउंड पूरा बनता है, विचार एक्टिव टू वेरी वर्क, दे आर कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होगा, जैसे कि ये एग्जांपल है हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट है, Fe+2, और इसके आसपास दो अल्फा हेलिक्स और दो बीटा प्लेटेड शीट प्रेजेंट है। समझ में आ गया? अभी आप ऐसा सपोज करो कि मैं प्रोटीन को ब्रेक करना चाहता हूं, प्रोटीन को क्या करना चाहता हूं, ब्रेक करना चाहता हूं। तो मैंने अगर यहां से आयन निकाल दिया, क्या निकाल दिया, आयन निकाल दिया, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मुझे अल्फा या बीटा के जो भी टर्शियरी स्ट्रक्चर था, जो इरेगुलर कनेक्ट था, जो इरेगुलरली क्या था, एक दूसरे के साथ कनेक्ट था, वो मिल जाएगा। और मैं फ्री था, उस इरेगुलर कनेक्शन को मैंने रिलीज किया, और रिलीज करने के बाद मुझे क्या मिला, या तो अल्फा हेलिक्स मिला या फिर बीटा प्लेटेड शीट मिली, या तो क्या मिला, अल्फा हेलिक्स मिला या फिर बीटा प्लेटेड शीट मिली। यानी कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद क्या मिलेगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद क्या मुझे मिलेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स है, दोनों एंड को मैंने खींच के सारा हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दी और एक सिंगल लाइन बना दी। या फिर ये जो दोनों पॉलीपेप्टाइड की चेन थी, वो दोनों पॉलीपेप्टाइड की चेन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था उसको मैंने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद उसको भी खींच के एक सिंपल रेगुलर चेन ऑफ एमिनो एसिड बना दी, तो वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। यानी कि अगर ब्रेक करने की बात आए तो सबसे पहले क्या ब्रेक होगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ब्रेक होने की वजह से क्या बनेगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में से रिलीज होने के बाद वो क्या बनेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में से रिलीज होने के बाद क्या बनेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता हूं तो अभी वो पुराना वाला एमिनो एसिड या फिर पुराना वाला एमिनो एसिड का जो भी सीक्वेंस था वो वहां पे प्रेजेंट है नहीं। अगर वहां पे सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है, अगर वहां पे स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम प्रोटीन बोल सकते नहीं है, क्योंकि वो कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन बन गया होगा। वो क्या बन गया होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। और अगर कुछ ऐसा होता है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको हम
पूरा जो प्रोटीन था उसका क्लीवेज बोलेंगे। उसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर डीनेचरेशन या फिर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की बात आए तो प्राइमरी को हम नहीं ब्रेक कर सकते। प्राइमरी को ब्रेक करने के बाद पूरा प्रोटीन ही ब्रेक हो जाएगा, वो कुछ दूसरा प्रोटीन बन जाएगा या फिर एमिनो एसिड की सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगी नहीं। तो क्वाटरनरी ब्रेक होगा, उसके बाद टर्शियरी ब्रेक होगा, उसके बाद सेकेंडरी ब्रेक होगा और सेकेंडरी ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। आगे प्रोटीन के ऊपर वो कॉलर की तरह प्रेजेंट है, उसके अंदर हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। उसकी वजह से अगर प्रोटीन के ऊपर कोई भी डिटर्जेंट या फिर एसिड या फिर टेम्परेचर या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की अगर रिएक्शन की जाए तो वो अपने स्ट्रक्चर को लूज कर देता है। वो अपने स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, लूज कर देता है, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। उसको बोलेंगे डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। उसको हम क्या बोलेंगे, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। समटाइम्स प्रोटीन इज प्रेजेंट एज अ कॉलॉइड। प्रोटीन कैसे प्रेजेंट है, कॉलॉइड, और उसका अपना कॉलॉइड स्ट्रक्चर लूज कर देता है। वो उसका अपना कॉलॉइड स्ट्रक्चर क्या कर देता है, लूज कर देता है। उसको हम बोलेंगे कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन। उसको हम क्या बोलेंगे, कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन। मैं रिपीट करता हूं, प्रोटीन के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। प्रोटीन के अंदर हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। उसकी वजह से अगर प्रोटीन में कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला जाए या फिर कोई डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्वेंट डाला जाए या फिर टेम्परेचर की इफेक्ट की जाए या फिर एसिड डाला जाए या डिटर्जेंट डाला जाए तो वो अपना प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या कर देता है, लूज कर देता है। दे लूज देयर ओन स्ट्रक्चर एंड दैट कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। दिस कॉल्ड व्हाट, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। एंड अनदर थिंग इज प्रोटीन इज प्रेजेंट एज अ कॉलॉइड फॉर्म। प्रोटीन इज प्रेजेंट एज अ व्हाट, कॉलॉइड फॉर्म। मतलब वो कॉलॉइड फॉर्म की तरह प्रेजेंट है, वो कॉलॉइड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है और उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है और वो सारे मिक्स होके क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसको बोलेंगे कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन। उसको क्या बोलेंगे, कोआगुलेशन ऑफ व्हाट, प्रोटीन। क्लियर? इससे मैं सिंपल एग्जांपल आपको दे सकता हूं। हमने पहले ही बात की कि हमें जो एग वाइट है, हमारे पास जो एग वाइट है वो एग वाइट के अंदर क्या प्रेजेंट है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एल्ब्यूमिन। अभी वो लिक्विड फॉर्म में, लेकिन अगर आपने वो एग को ब्रेक करके तवे पे डाला जहां पे टेंपरेचर क्या है ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, तुरंत ही सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तुरंत ही हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना स्ट्रक्चर रिलीज कर देगा, अपना स्ट्रक्चर लूज कर देगा। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। उसको अगर हम बॉयल कर दें तो भी वो जो लिक्विड फॉर्म में एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड फॉर्म। इट इज क्लियर टू फाइन। ना सी ये कोई इंफॉर्मेशन थी प्रोटीन के बारे में। बाकी का सब कुछ वैसे तो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया लेकिन फिर भी आपको एक बार एनसीईआरटी में से स्टडी करना है। इसमें स्टडी करना है, एनसीईआरटी में से एक बार इसको करना है। Enzyme is a biochemical catalyst. कैटलिस्ट के बारे में हम बताइए, वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। हमारी बॉडी में क्या हो रही है, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन होती है, ऑल रिएक्शन आर कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शन। और वो बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए जो भी कंपाउंड चीज होते हैं उसको बोलेंगे बायोकेमिकल कैटलिस्ट। और बायोकेमिकल कैटलिस्ट को बोलेंगे एंजाइम। बायोकेमिकल कैटलिस्ट को क्या बोलेंगे, एंजाइम। सी it increases rate of biochemical reaction by 10 to 12 to 10 to 18 times। जो नॉर्मल रेट है उसकी 10 to 12 या फिर 10 to 18 टाइम्स वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। उसकी वजह से बायोकेमिकल रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगी, उसकी रेट की स्पीड बहुत ही
बढ़ जाए। एंजाइम इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। याद रखना प्रोटीन अकेला कुछ काम का नहीं है, लेकिन एंजाइम मेनली किसका बना हुआ है? प्रोटीन। प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम is called apoenzyme, which is inactive. वो अकेला कुछ काम का नहीं, मैंने पहले भी आपको बोला। उसके साथ ओके, अगर कोई ऐसा पार्ट प्रेजेंट है जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है जो उसको हेल्प करने वाला है, तो उसको हम बोलेंगे कोएंजाइम। क्या बोलेंगे? कोएंजाइम। ये एपोएंजाइम और कोएंजाइम दोनों मिक्स होने के बाद बनेगा एंजाइम व्हिच इज रिएक्टिव या रिएक्टिव। समझ में आ गया? प्रोटीन की वजह से एंजाइम बना हुआ है, लेकिन उस एंजाइम का जो भी प्रोटीनियस पार्ट है, यानी कि प्रोटीन से बना हुआ पार्ट है, वो अकेला प्रोटीन पार्ट इनएक्टिव है, वो कोई वर्क शो नहीं कर सकता या फिर कोई एक्टिविटी शो नहीं कर सकता, उसको बोलेंगे एपोएंजाइम। अगर उसके साथ कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस जुड़ा हुआ है या फिर कोई दूसरा सब्सटेंस जुड़ा हुआ है जो उसकी एक्टिविटी को इंड्यूस करता है या फिर एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए मदद करेगा, तो उसको बोलेंगे कोएंजाइम। ये एपोएंजाइम और कोएंजाइम मिक्स होकर क्या बोलेंगे? एक्टिव एंजाइम। अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस की जगह पे मेटल आयन प्रेजेंट है जो उसकी एक्टिविटी को प्रमोट करें, जैसे कि Fe+2, Mn+2, Cobalt+2, Zn+2, ऐसे Copper+2, they are known as a cofactor। उसको हम क्या बोलेंगे? कोफैक्टर। क्लियर? वो सारे मिक्स होकर क्या बनेंगे? एक्टिव। याद रखना एंजाइम एक्टिविटी is very specific। एंजाइम एक्टिविटी इज वेरी स्पेसिफिक, वो बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है और स्पेसिफिकली वर्क करता है, सभी पे वर्क नहीं कर सकता। उसका अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना हो तो समझना पड़ेगा लॉक एंड की मॉडल। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? लॉक एंड की मैकेनिज्म, हाउ इट वर्क्स। लेट्स सी, जैसे कि एंजाइम ई, इसको हम बोलेंगे बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम या फिर एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जहां पे एक्टिविटी होगी। एज एन एग्जांपल, आपके पास ये साल है, सबस्ट्रेट प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? सबस्ट्रेट। तो आपको देख के ही पता चलेगा कि ये जो सबस्ट्रेट है वही सबस्ट्रेट यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है, दूसरा कोई सबस्ट्रेट वहां पे कनेक्ट हो सकता नहीं है। अगर ये सबस्ट्रेट के साथ कनेक्ट हो रहा है, यानी कि ये एंजाइम सिर्फ यही सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिकली एक्टिव है। वो क्या है? स्पेसिफिकली एक्टिव है वही सबस्ट्रेट के लिए, वो उसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे एंजाइम है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है, इसको बोलूंगा मैं ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जुड़ने की वजह से उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। जो भी रेट ऑफ रिएक्शन था वो क्या हो जाएगा? बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपका एंजाइम वापस मिल जाएगा और सबस्ट्रेट में से मिल जाएगी प्रोडक्ट। इस एंजाइम को फिर से
बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। इसको लॉक एंड के मॉडल, इस लॉक को ओपन करने के लिए यही की वर्क करेगी, दूसरी कोई की वर्क करेगी नहीं। जैसे कि अगर किसी की बाइंडिंग साइड कुछ ऐसी हो, ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, बाइंडिंग साइड का मतलब ऐसा है कि वो किसके साथ केमिकल बॉन्ड बनाने के बाद रिएक्टिविटी शो करता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक स्क्वायर स्ट्रक्चर या फिर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा है कि जो प्रोटीन पार्ट है या फिर हो सकता है उसकी वजह से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ होगा जहां पे सबस्ट्रेट आके कनेक्ट हो सकते हैं या फिर वहां पे आके एक दूसरे के साथ जुड़ के केमिकल रिएक्टिविटी या फिर बायोकेमिकल रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यही सबस्ट्रेट कनेक्ट होगा। तो ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के लिए क्या है, स्पेसिफिक, यानी कि इस लॉक के लिए ये की स्पेसिफिक, इसको हम बोलेंगे लॉक एंड की मॉडल। इसको हम क्या बोलेंगे, लॉक एंड की मॉडल। एंजाइम इसी तरह वर्क करता है, समझ में आ गया। अगर हमें एंजाइम का हमें कैसे करना है, हमें क्या करना है, एंजाइम का हमें कैसे you have to apply AZE as on the basis of reactivity or reaction shown by enzyme or substrate on what enzyme react, वो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन करता है उस एंजाइम के नाम के अंदर हमें एज लगाना है, या फिर वो जो भी रिएक्शन शो करता है उसके अंदर हमें एज लगाना है। कैसे, जैसे कि एंजाइम रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प होता है तो हम एंजाइम को बोलेंगे रिडक्टेज। जैसे कि एंजाइम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हेल्पफुल करता है तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेज। अगर वो हाइड्रोलिसिस में हेल्पफुल होता है तो हाइड्रोलेज। जैसे कि वो आइसोमराइजेशन रिएक्शन में हेल्पफुल होता है, आइसोमरेज। क्लियर। अभी जो रिडक्टेज कैटालिस्ट है उसको हम ऑक्सीडेज की तरह यूज कर सकते हैं नहीं, क्योंकि वो उसका वर्क कैसा है, स्पेसिफिक। ये तो मैंने रिएक्शन के तौर पे लिखा, अगर मैं लिखता हूं वो किसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है, जैसे वो रिएक्ट कर रहा है प्रोटीन पे, प्रोटीएज, लिपिड, लाइपेज, माल्टोज, माल्टेज, लैक्टोज के ऊपर वर्क करता है, लैक्टेज, यूरिया के ऊपर वर्क करता है, यूरेज, सेलुलोज के ऊपर वर्क करता है, सेलुलोज। जैसे कि वो वर्क करता है सुक्रोज के ऊपर तो सुक्रेज, लेकिन सुक्रोज का दूसरा नाम है इनवर्ट शुगर, तो उस एंजाइम को बोलूंगा मैं इनवर्टेज। अभी अगर मुझे यूरिया हाइड्रोलिसिस करना है, यूरिया का हाइड्रोलिसिस करना है तो मैं यूरेज कैटालिस्ट ही यूज कर सकता हूं, उसके लिए मैं सेलुलोज यूज कर सकता नहीं। जैसे कि मुझे सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करके फ्रुक्टोज और ग्लूकोज चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या एंजाइम यूज करना पड़ेगा, इनवर्टेज। उसके लिए मैं लाइपेज, माल्टेज या लैक्टेज यूज कर सकता नहीं। क्यों? क्योंकि एंजाइम की रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक। एंजाइम की रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ही स्पेसिफिक है। एंजाइम पूरा कैटालिस्ट की तरह ही बिहेव करता है, यानी कि कैटालिस्ट के ऊपर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़े थे, कैटालिस्ट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाता है, उसके ऊपर कौन से कंपाउंड कैसे इफेक्ट करते हैं, वो सेल्फ कैटालिसिस कैसे कर सकता है, क्यों कम कैटालिस्ट यूज करने की वजह से भी हमें ज़्यादा रिएक्शन मिलती है, क्योंकि वो कैटालिस्ट रिएक्शन के बाद हमको वापस मिलता है।
सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम के ऊपर भी अप्लाई होते हैं। समझ में आ गया? ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विटामिन। इनिशियली विटामिन का नेम था विटामाइन, क्योंकि साइंटिस्ट को ऐसा लगा था कि सारे विटामिन के स्ट्रक्चर के अंदर एमाइन ग्रुप प्रेजेंट, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? एमाइन। लेकिन उसके बाद प्रूव हुआ कि सारे स्ट्रक्चर में एमाइन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, उसकी वजह से ई निकल गया और नाम हो गया विटामिन। विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इन एवरीडे लाइफ हम बहुत ही कम यानी कि माइक्रो कंपाउंड्स, बहुत माइक्रो लेवल पे विटामिन की जरूरत होती है, लेकिन हमें रेगुलरली विटामिन की जरूरत है, वो हमारे लिए एसेंशियल है। अगर वो हमारी बॉडी में नहीं होगा तो बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे डिजीज हमें हो सकते हैं। अगर वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो भी हमें डिफेक्ट हो सकते हैं, थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्लियर? विटामिन कौन कौन सा है हमारे पास? विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स B1, B2, B12 etc. C, D, E, K, H। ओके, आपको खुद लर्न करना है कि सारे विटामिन के नेम क्या है, कौन सा रेटिनॉल है, कौन सा थायमिन है, कौन सा साइटोकोबाल्टामाइन है, कौन सा टोकोफेरोल है, कौन सा कैल्सीफेरोल है, कौन सा बायोटिन है। ओके, सारे आपको खुद लर्न करना है और वो आपको कहां से मिलेगा, और अगर आपके बॉडी में वो विटामिन प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वजह से आपके बॉडी में कौन सी डिफेक्ट हो सकती है वो आपको लर्न करनी है। समझ में आ गया? लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले से पूछा गया है और वो जो ज्यादा पूछा जाता है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, याद रखना। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल या फिर लिपिड सॉल्युबल। याद रखना, विटामिन ए, डी, ई, के वो लिपिड सॉल्युबल या फिर फैट सॉल्युबल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी आर वाटर सॉल्युबल। याद रखना, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि B1, B2, B12 सारे और सी वो सारे वाटर सॉल्युबल है, और विटामिन एच आर water insoluble and lipid insoluble या फिर fat insoluble। समझ में आ गया? A, D, E के fat soluble यानी कि water insoluble, B complex and C water soluble यानी कि lipid insoluble, और विटामिन H यानी कि बायोटिन वो वाटर के अंदर भी insoluble है और लिपिड के अंदर भी insoluble है। ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले पूछा गया है। आपको क्या करना है इसके अंदर, ये सारे उसका रेगुलर नेम क्या है, रेटिनॉल कौन सा है, कैल्सीफेरोल कौन सा है, टोकोफेरोल कौन सा है, साइटोकोबाल्टामाइन कौन सा है, वो सारे आपको लर्न करना है। फाइन, वो आपको कहां से मिलेंगे और वो अगर आपके बॉडी में प्रेजेंट है तो कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं वो आपको लर्न करना है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने मेनली प्रोटीन के बारे में स्टडी किया, उसके बाद हमने एंजाइम पूरा स्टडी किया है, और उसके बाद हमने विटामिन स्टडी किया है। मेन इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है, जो थियोरेटिकल पार्ट है वो आपको लर्न करना है। समझ में आ गया बच्चों? ये सारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ओके बच्चों, किसी को भी कहीं भी समझ में नहीं आया तो वो कभी भी मुझे एज ऑलवेज कभी भी मुझे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए यहाँ तक रखते हैं।